थैंक यू सो मच श्रेया, जितना भी आपने समझा है उसके लिए. सो बेसिकली एज माई वर्दी फ्रेंड ऑलरेडी एक्सप्लेन द सेवन, द रेस्ट seven I have to explain. What are those? Hence bed. So what are the terms for this? H for healthy relationships, E for easy information, N for no legal restriction, S for self-employment, B for benefits of inherited goodwills, E for again easy to raise finance, and at last D for direct accessibility to customers. Friends, healthy relationship with employees. Basically, if you are a sole trader, as I explained in last class, what is a sole trader? A person who single-handed employed person who sell the products for his own profit without any legal restrictions. Healthy relationships with employees. अगर वो खुद ओनर है तो he will employ some people for his profit. अगर वो एम्प्लॉय दे रहा है तो उन्हें पे करेगा. If he is having a healthy relation with them, means communication. Healthy relation includes communication, clear communication, respect and feedback. Clear communication in terms of you have to told them कि मेरा एक्सपेक्टेशन क्या है तुमसे मेरे कंपनी के लिए, क्योंकि ओनर का कुछ तो एक्सपेक्टेशन होगा, इसलिए दैट्स व्हाई ही इज पेइंग हिज एम्प्लॉय, राइट. दैट्स व्हाट क्लियर कम्युनिकेशन फर्स्ट. देन रेस्पेक्ट. यू हैव टू रेस्पेक्ट योर एम्प्लॉयज फॉर बेटर एक्सपेक्टेशन. तुम्हारे एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करने के लिए तुम्हें उनको उतना रेस्पेक्ट भी देना पड़ेगा ताकि वो उनके अंदर भी तुम्हारे लिए एक रेस्पेक्ट हो, तभी जाकर दे विल ओबे योर ऑर्डर्स. देन फीडबैक. ऑलवेज ट्राई टू गिव ए फीडबैक टू देम एज उनको अप्रिसिएशन, एज एन अप्रिसिएशन दे विल फील लाइक दे आर अप्रिसिएटेड बाय द ओनर. अगर वो अप्रिसिएशन फील ही नहीं करेंगे, विल दे वर्क अप टू देयर कैपेबिलिटी? नो, राइट. So you have to always give feedback. This is what healthy relationship with employees. Easy information. Next, our easy information. What is that? For a sole trader, things can be easy in terms of simple setup, then control. What is simple setup? Firstly, sole trader have to make some particular basic things in his business that will attract to the peoples. अगर वो peoples को attract ही नहीं कर पाएगा, will he can able to run his business? No, right. So he must know what to do that people will attract by his business products. If I am selling a perfume, I must know how to recommend my customers that how to recommend my perfume that they will buy it from me. That's my motive. Then control. I have to control how to set up the products. Simple setup में control करना is very important. This is what included in easy formation. Easy in terms of doing the things in a easy manner. कुछ भी कहीं रख देना is not an easy formation. सही जगह पर सही चीज को रखना is called easy information. सही जगह पर सही चीजों को रखोगे तभी कस्टमर्स को पता चलेगा दिस प्रोडक्ट इज अवेलेबल इन हियर, सो वी हैव टू गो देयर एंड बाय इट. वरना कस्टमर्स को प्रॉब्लम होगा वो चीज ढूंढने में. दैट इज व्हाई इट इज इजी इन्फॉर्मेशन. समझ आ रहा है? देन नो लीगल रेस्ट्रिक्शन. एज आई टोल्ड अर्लियर, द सोल ट्रेडर बिजनेस इज नॉट लीगली अपील्ड फर्म. FERM फर्म मतलब अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है विथआउट एनी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन. उसकी मर्जी है वो. सो रेस्ट्रिक्शन अवेलेबल कहां पर है? या तो आप पार्टनरशिप कर रहे हो तभी आप रेस्ट्रिक्शन में अवेलेबल, रेस्ट्रिक्शन इज देयर, या फिर यू आर इन ए लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, देन इट विल बी गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्टेड. बट इन सोल ट्रेडर देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन. अगर तुम जब चाहो जो चाहो, एज माय फ्रेंड ऑलरेडी टोल्ड, जो भी चाहो वो तुम कर सकते हो.
अपनी मर्जी से. That's what government restriction, no legal restriction means. If it is government restricted, so he have to follow the government rules. But it is not government restricted. That's why the term called no legal restriction. Legal is the part of a government. अगर it's not like sole trade is illegal, but it is not even legal. You have to know your boundaries. जब चाहे जो चाहे कर सकते हो, but in a limit. Okay, that is what no legal restriction. कुछ भी कर सकते हो, but in a limits. Government is not responsible for any of your loss. You are the only person who is responsible for any of your loss. Socially desirable. The product, the thing you are selling, you must know that is it the demand of the peoples. अभी तुम्हें बाहर का कुछ खाना पसंद है, तो उसे कैसे मैं बनाऊं जो वो लोगों को अच्छा लगे. Socially desirable. If you know how to sell the product, if you know how to communicate with the person, you will get to know the feedbacks about your products. जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो वो अभी ट्रेंड में है या नहीं, बिकॉज पीपल विल ऑलवेज फॉलो द ट्रेंड, नो वन इज गोइंग बियॉन्ड द ट्रेंड. इफ इट इज इन द ट्रेंड, द प्रोडक्ट विल बी सेल as fast as it is possible. This is what the motive of a businessman or a sole trader, to sell their products. But for selling the product, you have to know that it is socially desirable or not. अगर लोग उसे पसंद करते हैं तभी जाकर you will get to know that your product is selling or not. That is what is this is what socially desirable called. Then again B, benefit of inherited goodwill. Let understand goodwill क्या है. Goodwill means your reputation in market. One question is there, why you all came to this institution only TNT? Because तुम लोगों ने इसके बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा, है ना, या फिर किसी ने रेकमेंड किया होगा. If it is not recommended or you didn't hear about it, क्या तुम इधर आते पढ़ने के लिए? Because you know that इधर कॉमर्स के लिए कुछ अच्छा पढ़ाई हो रहा है एंड हमने कॉमर्स लिया है, दैट्स फॉर विच वी हैव टू कम हियर, तो ताकि हमारा परसेंटेज अच्छा है, राइट. अभी टीएनटी का प्रमोशन गूगल में है और ग्लोबली है, वॉल्स पे भी कई जगह पर भी लगा है, यू रेड या फिर किसी ने तुम्हें रेकमेंड किया है, दैट्स व्हाई यू केम हियर, राइट. दिस इज व्हाट शोस अबाउट द टीएनटी, दैट टीएनटी हैज ए गुडविल, दैट वो बच्चों को अच्छा पढ़ाई देते हैं, सिखाते हैं, दैट्स व्हाई इट इज फेमस फॉर इट. दिस इज द गुडविल ऑफ होम, टीएनटी, राइट. सो फॉर ए सोल ट्रेडर उसका रेपुटेशन भी अच्छा होना चाहिए. इफ यू आर गोइंग फॉर ईटिंग पानी पूरी, तो अगर तुम अपने दोस्त को किसी को सजेस्ट कर रहे हो तो यू विल पर्टिकुलरली सजेस्ट द वन विच यू लाइक, जो तुम्हें पसंद है, जहां तुम जाना पसंद करते हो वहीं पर ही तुम अपने दोस्त को सजेस्ट करोगे, बिकॉज यू लाइक दैट प्लेस फॉर ईटिंग. तो उस जगह पे उस पानीपुरी वाला का क्या बड़ा रेपुटेशन, राइट, मीन्स गुडविल. वो अच्छे से शायद तुम्हें ट्रीट किया होगा, दैट्स व्हाई यू लाइक इट एंड यू प्रमोटेड इट. दिस इज व्हाट गुडविल ऑफ द पानीपुरी वाला. हाउ टू, अभी गुडविल्स में, फॉर गुडविल यू हैव टू बी मच कैपेबल दैट लोग तुम्हारी तारीफ करें. सर इज कैपेबल टिल 25 years because he has some goodwill. That's why लोग उनके बारे में तारीफ करते हैं. And all we came here without doing anything, no one can say it is good or wrong. अगर किसी ने इधर का नाम सुना ही नहीं होता तो क्या वो इधर आते पढ़ने के लिए? No, right. This is what goodwill, inherited of goodwill, benefits of inherited goodwill. अगर आप अच्छा बिहेव करोगे तभी जाकर तुम्हें अच्छा रिजल्ट भी दिखेगा, अच्छे कर्मों का अच्छा फल. Easy to raise finance. So sole trader में there is no government legalities, means जो प्रॉफिट हुआ जो भी हुआ सब तुम्हारा. So कुछ लोग जाते हैं पानीपुरी वाले के पास, वो बोलते हैं ठीक है भैया बाद में कर दूंगा. हाउ दे आर कैपेबल टू से दिस? बिकॉज या तो वो रेगुलर कस्टमर होंगे या फिर जान पहचान वाले होंगे, राइट.
बिना जान पहचान वाले के वो तो नहीं देने वाला किसी को पानी पूरी, राइट। व्हाट इट शोज कि तुम उधर फाइनेंशियली कुछ हेल्प मांग भी सकते हो या फिर वो कुछ एक्स्ट्रा दे रहा है, मतलब फाइनेंशियली वो आप उसे हेल्प भी कर सकते हो। अभी वो जो दे रहा है फ्री में, व्हाट इज दैट, ही इज हेल्पिंग यू विथ योर मनी। अभी तुमने बचा लिया, बाद में तुम पे करो ना करो वो तुम्हारे ऊपर है। और ही कैन आस्क यू फॉर पेमेंट एज यू आर देयर रेगुलर कस्टमर, कि भैया थोड़ा मंदी चल रहा है तो अभी पैसा दे दो, बाद में कभी निपटा लेंगे, राइट। This is what easy to raise finance means if they are much well so they can provide financial help. अगर वो फाइनेंशियली हेल्प कर पा रहे हैं मीन्स दे आर इन गुड सेक्टर्स, वो अच्छा कमा रहे हैं, दैट व्हाई ही इज फाइनेंशियली हेल्पिंग। लेकिन इन दिस केस दे कैन टेक हेल्प फ्रॉम गवर्नमेंट एज दे आर नॉट लीगली अपील्ड, बट they have to pay some taxes because they are earning, right? अर्निंग के लिए कुछ टैक्स देना पड़ता है, ओके, एज इन एनी टैक्स फॉर्म। एट लास्ट, डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू कस्टमर्स। इन सोल ट्रेडर द ऑपरेशन इज वेरी स्मॉल, सो द स्केल टू कनेक्ट पीपल इज वेरी इजी। एज वी रेड अर्लियर कि जो सोल ट्रेडर होता है उनका जो ऑपरेशन होता है वो लिमिटेड एरिया में ही फॉर्म होता है। एज इफ यू आर ए किरानी दुकान वाला, तो उधर के जितने भी लोग हैं तुम्हारे पास ही आएंगे बिकॉज यू आर ओनली अवेलेबल फॉर देम। अगर कोई और दुकान होता तो तुम्हारा कंपटीशन बढ़ता, बट टू एस्केप द कंपटीशन तुमने सोल ट्रेडर बिजनेस स्टार्ट किया ना, ज्यादा रिस्क ना लेना पड़े। सो एट दिस पॉइंट you are only available for the customers, so you are the only need of the customers. अगर तुम कभी दुकान वगैरह बंद कर देते हो तो प्रॉब्लम किसको होगा, कस्टमर्स को। लेकिन इफ यू आर अर्निंग वेल सो यू विल डू दैट, नो राइट, कभी भी दुकान बंद नहीं करोगे फॉर योर अर्निंग। कहने का मतलब ये है कि जो लिमिटेड एरिया में ऑपरेशन हो रहा है तुम उन लोगों के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हो, सो यू नो कि तुम्हारे पास इतने कस्टमर्स है, रेगुलर कस्टमर्स की जो आते हैं लेते हैं आते हैं। एज बैंक नो कि अगर एक बिजनेस वाला मुझसे लोन ले रहा है, ही इज मच कैपेबल। अगर मीन्स इफ द बैंक इज प्रोवाइडिंग 50 लाख रुपीज एज लोन, सो ही नो व्हाई ही विल प्रोवाइड, ही नो दैट ही इज अर्निंग बेस्ट, राइट। सो एक सोल ट्रेडर में भी उसको पता है कि मुझे आज इतना अर्न करना है बाय हिज रेगुलर कस्टमर, बाकी जो है दैट्स वो बाहर का है। लेकिन जो उसके पास अभी अवेलेबल है, व्हाट ही विल ट्राई कि उनको थोड़ा डिस्काउंट दे दूं या फिर कुछ ऐसा कर दूं जो जैसे कि वो मेरे साथ रेगुलर रहे, जो भी खरीदे मुझसे ले। अगर कंपटीशन भी बढ़ा तो मैं उस कंपटीशन में फर्स्ट आ जाऊं, दैट्स व्हाट द मोटिव ऑफ ए सोल ट्रेडर। दिस इज व्हाट डायरेक्ट एक्सेसिबिलिटी टू द कस्टमर्स, बिकॉज यू नो योर प्रोवाइडेंस टू द कस्टमर्स इज रेगुलर, दैट्स व्हाई वो लोग तुम्हारे पास आ रहे हैं। दिस इज व्हाट a sole trader needs. Basically everyone is studying, doing business or anything just to income. अगर वो अच्छे वे से किया जाए तो वो अच्छा होगा, अगर वो ना किया जाए तो वो उसका नतीजा क्या होगा सबको पता है। थैंक यू।